हाउस ऑफ वेलनेस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम फिजिकल हेल्थ पर फोकस करेंगे और प्रोस्टेट और ब्लैडर्स की समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। I welcome Dr. Swaroop, who is a urologist and andrologist with professional training from High Volume Teaching Hospital in Mumbai. His special interest is in laparoscopic urology, endocrinology, and reconstructive urology. He is currently practicing at Sparsh Hospital. Welcome, doctor. Thank you so much for coming to our channel. वेलकम डॉक्टर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि प्रोस्टेट क्या होता है और किस तरीके की बीमारियां प्रोस्टेट से संबंधित हैं? So prostate, I'll share a photo of the prostate so that I think it will be easy for you to understand. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये this is called as bladder. This is where the urine stores. हमारा जो पेशाब किडनी में जो बनता है वो ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. So whenever we want to pass urine, it comes through this canal. This is called urethra. तो पेशाब इधर से आके फिर बाहर निकलेगा. So prostate is a gland which is present just below the bladder. You can see this is the prostate. So at the junction of urethra and the bladder, where the urine is stored, prostate is seen. So I would like to tell everybody that prostate is not a abnormal thing. It is a normal gland which is present in all men, and main function of this prostate gland is to provide nutrition to the semen. So coming to your question, diseases of prostate. So there are a lot of diseases which can occur in prostate, like infections of the prostate. We call it as prostatitis or prostatic abscesses. And most commonly in elderly patients, elderly men, we see prostatomegaly, that is benign prostatomegaly. एज के हिसाब से आफ्टर 50 years प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, इसको हम benign prostatic hyperplasia बोलते हैं. और third thing is cancers of the prostate. Like every other organ in the body, cancers of the prostate is also seen. So these are the most important diseases of the prostate we see in day-to-day practice. And there are other prostatic illnesses like prostatic stones and other things. We will not go into the details. जो senior citizens में usually होता है वो benign prostatic hyperplasia, that is BPH. Prostate जो रहता है नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है. तो ये जो प्रोस्टेट जो बड़ा होने का रीजन क्या होता है? After 40 to 50 years, there is lot of hormonal changes in the body, which causes the normal prostate, which is present in all men, to increase in size. So काफी लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, काफी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, and lot of people can present with lot of symptoms, various symptoms. We will discuss in detail regarding that. Thank you for that, doctor. तो जो अगर प्रोस्टेट अगर इनलार्ज हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जो जनरली जो प्रोस्टेट जब बड़ा होता है, एज आई शोड यू, जो ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में रहता है, इसमें आप देख सकते हैं. तो इस ये जो इमेज में प्रोस्टेट बड़ा हो चुका है, इसके कारण ये जो नली है, जो यूरेथ्रा है, ये कंप्रेस हो चुका है. तो इसके कारण क्या होता है, जो पेशाब जो ब्लैडर में बनता है वो पूरी तरफ से बाहर नहीं निकल पाता है. तो आफ्टर वी पास यूरिन आल्सो, द यूरिन विल बी not completely empty in the bladder, which it should be empty normally. So coming to symptoms, क्या क्या हो सकता है? First is frequency of urination. Frequency मतलब पेशाब पहले से, मतलब जब पेशेंट का जो नॉर्मल रहता है लाइक 3 to 4 times a day, वो उससे ज्यादा होने, मतलब 3 to 4 times से 5 to 10 times होना, वो सब इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. उसके बाद अर्जेंसी एंड अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस. अर्जेंसी मतलब पेशेंट कैन नॉट डिफर हिज वॉइडिंग,
patient has to he cannot postpone the urination. तो जब भी पेशाब लगता है तुरंत भागना पड़ता है, और कई बार अंडरपैंट्स में हो सकता है, मतलब लीक हो सकता है, उसको अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस बोलता है, वो सीवियर फॉर्म ऑफ अर्जेंसी होता है। तीसरा है नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया मतलब रात में 2 से ज्यादा टाइम पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। और फोर्थ सिम्टम इज डिक्रीज इन द स्ट्रीम ऑफ द यूरिन, मतलब पहले से पेशाब का फोर्स कम हो सकता है। ये सब के लिए कारण ये प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो सकता है, और प्रोस्टेट इधर जो ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में कंप्रेस करने के वजह से ये सब हो सकता है। और कई बार ये इसके कारण जो प्रोस्टेट बड़ा होने के वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस भी काफी बार हो सकता है, और यूरिनरी इन्फेक्शन के वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब पेशाब में जलन, पेशाब में खून जाना या पेशाब में सफेद जैसा निकलना, ये सब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉजेस हो सकता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए प्रोस्टेट इंटन एक रीजन हो सकता है। और एल्डरली मैन, मतलब आफ्टर 50 इयर्स अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, सो कोई भी पेशेंट ये सब सिम्टम्स के साथ आएंगे, सो एज ए यूरोलॉजिस्ट वी विल ट्राई टू एवेल्युएट हिज प्रोस्टेट। तो इसमें ये सब जो जो भी मैंने बताया, जो सिम्टम्स, इसमें कई बहुत सारे सिम्टम्स है वो जो रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, मतलब ये सब अगर हुआ तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है आपको। तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हेमेचुरिया। हेमेचुरिया मतलब पेशाब में खून निकलना, that is an emergency and patient has to consult urologist immediately. And another thing is पेशाब जाने के लिए, मतलब थोड़ा भी पेशाब बाहर नहीं निकल रहा है, and you will have pain in the lower abdomen, we call it as retention of urine. So उसमें क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में सूजन आ सकता है, उसके कारण पेशाब बाहर नहीं निकल सकता है, और पेशेंट को काफी तकलीफ हो सकता है उसके कारण। तो that is called as retention. In that scenario also patient has to contact a urologist immediately. And lot of elderly patients will have recurrent UTIs. UTIs, as I told you already, urinary tract infection, they can have burning micturition, that is पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है, बुखार आ सकता है, वो सब UTI का लक्षण हो सकता है। अगर बार बार आपको पेशाब में ये सब तकलीफ हो रहा है, then prostate can be the culprit. तो ये सब रेड फ्लैग साइंस जब जब भी सीनियर्स में प्रेजेंट होता है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना पड़ता है। ओके, थैंक यू फॉर दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर हमें प्रोस्टेट पर चेक रखना पड़ता है तो कौन सी हमें टेस्ट करना चाहिए और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? So as I told, if if a senior person has all these symptoms as a senior, then he should consult a urologist immediately. So generally first their general examination is done. We will see whether bladder is palpable. If मतलब जो भी मैंने urinary bladder जो दिखाया वो अगर abdomen से palpate हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि पेशाब पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको रिटेंशन बोला जाता है। तो coming to test, as I told you, the urologist will generally perform a digital rectal examination, which is performed with a gloved finger. मतलब उंगली से प्रोस्टेट को फील करना पड़ता है। तो उससे क्या है कि हम प्रोस्टेट का कंसिस्टेंसी, मतलब फर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वो फील कर सकते हैं। हार्ड प्रोस्टेट है तो फिर that goes more towards malignancy of the prostate. So that is a very important screening tool to detect cancers in the prostate. So digital rectal examination, which is very important for screening of prostate. Now coming to investigation part of the prostate health. So generally we advise ultrasound of the abdomen, which will include pre-void, post-void and prostate size. सो प्रीवॉइड का मतलब ये होता है कि आप पेशाब पूरा रुक के पेशाब, मतलब पेशाब का थैली जो ब्लैडर है उसका कैपेसिटी अल्ट्रासाउंड में हम मेजर करेंगे, और पेशाब करने के बाद जो पोस्ट वॉइड बोला जाता है, तो पेशाब कितना पेशाब के थैली में बच रहा है तो उसको हम मेजर करेंगे। अगर ज्यादा पेशाब के थैली में आफ्टर पासिंग यूरिन आल्सो इफ देयर इज लॉट ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर, देन it becomes very significant. That becomes a
source for infection. So ultrasound is a very important investigation for patients who present with the above previously mentioned symptoms. And coming to screening, so पेशेंट्स काफी बार हमको पूछेंगे कि प्रोस्टेट जो कैंसर आता है उसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मतलब अकॉर्डिंग टू जो रिकमेंडेशन है, तो 55 टू 69 इयर्स में हम प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बट प्रोस्टेट कैंसर का एक अच्छी चीज है कि वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, मतलब it will take lot of time to increase. So patient should be made aware of the risks of doing a screening procedure. अगर ज्यादा आया स्क्रीनिंग में, मतलब जो PSA टेस्ट बोलते हैं हम, that is used for screening of prostate cancer. PSA मतलब prostate specific antigen. जो खून तपास होता है उसमें हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल्स टेस्ट करते हैं। तो उसमें नॉर्मली हम लेस देन 4 नॉर्मल माना जाता है, 4 to 10 बॉर्डर लाइन और मोर देन 10 अब नॉर्मल। तो काफी सारा अदर कॉजेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एलिवेट हो सकता है। तो पेशेंट के मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर घट के आया तो हमेशा प्रोस्टेट कैंसर ही एक कारण है। तो वी शुड ऑलवेज टेक अ कंसल्टेशन विद द यूरोलॉजिस्ट टू एनालाइज द वैल्यूज ऑफ द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो 55 टू 69 इयर्स में नॉर्मली स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स कर सकते हैं। मोर देन 70 इयर्स में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। Prostate cancer screening is very important in patients who have significant history, family history. भाइयों को या फादर को प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है, देन स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड। तो उस टाइम हम 45 या 50 इयर्स से ही स्क्रीनिंग चालू करते हैं। तो उसमें स्क्रीनिंग में दो चीज रहता है, एक PSA टेस्ट जैसे मैंने बोला है, ब्लड टेस्ट है, दूसरा है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया, वो जो ग्लोव्ड फिंगर से प्रोस्टेट को एग्जामिन करना। ये दोनों चीज से हम प्रोस्टेट अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जब स्टेज कम रहता है तो उसी टाइम हम पकड़ सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर को। बट ये इम्पोर्टेंट, these screening procedures are important basically in patients who have a significant family history, especially prostate cancer का। एंड अदर कैंसर्स लाइक कोलन कैंसर, ओवरियन कैंसर जो फैमिली में अगर रहेगा तो भी प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग करना जरूरी है। तो ये जो टेस्ट है इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि वापस कब करना है। जनरली अगर फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है तो 1 or 2 इयर्स में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर एक बार नॉर्मल आया, दोनों चीज मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नॉर्मल लेस देन 1 आया, फिर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम 7 से 8 साल तक कोई स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब बार बार वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सस्पिशियस है, फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, PSA थोड़ा एलिवेटेड है, तो फिर 1 साल में या 2 साल में रिपीट करना पड़ सकता है। और दूसरा एक इन्वेस्टिगेशन है, हम यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं, इसमें हम पेशाब का स्पीड चेक करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास आएंगे, पेशाब का फोर्स जो है वो बहुत स्लो है, पहले से काफी सारा स्लो हो चुका है, तो हम एक यूरोफ्लोमेट्री, व्हिच इज नथिंग बट अ कर्व ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टाइम, मतलब 1 मिनट में 1 सेकेंड में कितना पेशाब होता है, वो एक स्पीड चेक करने का तरीका है। उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट का फ्लो कैसा है, अच्छा है, नॉर्मल है, ज्यादा है, कम है, और ट्रीटमेंट देने के बाद कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बट ये सब जो मैंने बता रहे अभी, अल्ट्रासाउंड है या यूरोफ्लोमेट्री है, ये सब नॉर्मल पेशेंट्स को करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिम्टम्स है तो ये सब करना जरूरी हो। थैंक यू डॉक्टर, दैट वाज वेरी वेरी डिटेल्ड। डॉक्टर, क्या कोई रिलेशनशिप है लाइफस्टाइल और प्रोस्टेट हेल्थ के बीच में? सो प्रोस्टेट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में बहुत सारा रिलेशनशिप है।
actually the first line of treatment in management of lower urinary tract symptoms, जैसे मैंने बताया symptoms, जब अगर वो जो symptoms mild nature है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसको भी प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सारा ट्रबलसम सिम्टम्स नहीं है, तो डायरेक्ट गोली लेने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट दे कैन ट्राई विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइट में कैफीन रिस्ट्रिक्शन करना, मतलब एनी फॉर्म ऑफ कैफीन, coffee, tea, or any caffeine source. And second is restrict tobacco and alcohol. And third is एक कॉमन नोशन रहता है कि अगर कोई भी पेशाब का बीमारी है तो सब लोग बोलेंगे पानी अच्छे से पी लो, पानी अच्छे से पी लो। तो उसका जरूरत नहीं है। मतलब जब भी प्रोस्टेट के वजह से सिम्टम्स है तो पेशेंट्स को दो से ज्यादा 2 लीटर से ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है। 2 to 2.5 लीटर्स इज व्हाट इज रेकमेंडेड। अगर पेशेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डेली मतलब बहुत स्वेट होगा, तो फिर अनदर 500 ml ऐड कर सकता है। जैसे कॉमन नोशन रहता है अगर पेशाब का बीमारी है तो बहुत सारा पानी पी लो, 5 लीटर 6 लीटर, उसका जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, पेशाब का जो तकलीफ है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो नॉक्टूरिया मैंने जैसे बताया, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है, वो सब ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा बॉडी में जो नेसेसिटी है उससे ज्यादा इंटेक्ट हुआ तो ये सब सिम्टम्स अग्रवेट हो सकता है। तो अनदर थिंग इज जिन पेशेंट्स को रात में पेशाब के लिए बार बार उठना, जो नॉक्टूरिया बोलते हैं, तो उन लोगों को हम क्या सजेस्ट करते हैं कि whenever you sleep, you should give at least 2 hours of gap for intake of fluids. जैसे पेशेंट अगर 10 बजे सो रहा है तो 8 बजे के बाद पानी, any form of liquid should be restricted. So at least 2 hours of gap should be there. So that will prevent the increased frequency during night time. और डे टाइम के लिए जैसे मैंने बताया आपको 2 to 2.5 liters is sufficient. And another important thing is जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, जब वो प्रोस्टेट कंप्रेस होता है, जो ब्लैडर में यूरिन पूरा खाली नहीं होता है, तो टू एम्प्टी दैट वी ट्रेन द पेशेंट टू डू समथिंग कॉल्ड एज डबल वॉइडिंग. Double voiding is nothing but whenever you go and pass the urine, we'll ask the patient to pass it once again. So that is called as double voiding. इससे क्या होता है, जो भी पेशाब अंदर बच रहा है और पूरा खाली करने के लिए कोशिश करना पड़ता है पेशेंट को, इससे जो भी सिम्टम्स है वो सब कम हो सकता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. एंड एज आई टोल्ड यू, physical activity is very important. Obesity is another important factor. So we advise the patient to reduce weight and keep a good physical activity. Alcohol or tobacco, as I told you, is another aggravating factor. ये सब कम करने से जो भी प्रोस्टेट का प्रोस्टेट का साइज कम नहीं कर सकते ये सब से, पर we can avoid taking medications, we can avoid going for surgery if the patient has mild symptoms secondary to prostate enlargement. All these lifestyle modifications won't decrease the prostate size, but it will improve the symptoms. थैंक यू सो मच डॉक्टर. अगर किसी का प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है तो उनके पास क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं? तो एज आई टोल्ड यू, उसको हम 3 ग्रेडिंग में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. जब भी पेशेंट्स हमारे पास माइल्ड सिम्टम्स के साथ आते हैं तो फर्स्ट थिंग वी एडवाइज इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. उसको सेल्फ हेल्प बोलते हैं. जो भी मैंने बताया आपको 4-5 चीजें, वो सब करना जरूरी है. आफ्टर पेशेंट tries this lifestyle modifications for at least 3 to 4 weeks, we will reassess the patient. जो symptoms सीवियरिटी असेस करते हैं. अगर सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा है, देन वी विल स्टार्ट द पेशेंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट. तो मेडिकल ट्रीटमेंट में 2 तरीके का ड्रग्स मिलता है. एक है अल्फा ब्लॉकर, दूसरा है कि 5-alpha reductase inhibitor. I will not go into the details of that. So that is the first line of treatment. So उसके बाद टैबलेट्स लेने के बाद भी पेशाब में तकलीफ है, पेशेंट को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है या पेशाब में खून आ रहा है और पेशाब मतलब रिटेंशन, जैसे मैंने बताया पेशाब जा ही नहीं रहा है, लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग हो रहा है,
वो सब कारण अगर वो सब हुआ तो गोली लेने के बाद भी then we'll advise the patient for surgery. Surgery, it is not like conventional surgery where we cut open the abdomen and we stitch it. So it is a minimally invasive keyhole approach. तो इसमें क्या करते हैं, from the urethra, as I showed you in the picture, urethra will lead into the bladder. So the prostate will be surrounding the urethra. So हम पेशाब के रास्ते से दूरबीन डालेंगे, दूरबीन डाल के वो जो प्रोस्टेट है उसको इलेक्ट्रिक करंट से निकालेंगे. तो अभी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो लेजर भी आया है. सो लेजर से भी प्रोस्टेट को निकाल सकते हैं. और करंट, इलेक्ट्रिक करंट से जो कन्वेंशनल TURP बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये सर्जिकल मैनेजमेंट में यूज करते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. तो मेजरली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए 3 ट्रीटमेंट होता है. एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फेल्यूर हुआ तो मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें टैबलेट्स देते हैं पेशेंट्स को. अगर उसमें भी तकलीफ कम नहीं हो रहा है तो फिर सर्जरी एडवाइस करेंगे.